Today, what I'm going to do today, I'm going to do to explain Love Song of J. Alfred Prufrock, a well-known interior monologue of T.S. Eliot. Yesterday, I told you the gist. Yesterday, I told you the crux. Yesterday, I told you the theme. Yesterday, I told you that in the poem, an aged man, Prufrock, has been portrayed or has been presented. His problems, his issues, and challenges you find especially delay in action, lack of communication, you find infatuation, you find something you can say कि abnormality, mental sickness, प्रोकास्टिनेशन, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो प्रूफरा के कैरेक्टर से जुड़े थे। कल हम लोगों ने उन सब चीजों को लेकर के डिस्कस किया था। आई टॉक्ड विद यू एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू what today I'm going to explain the original lines of Prufrock. It's a very important poem of T.S. Eliot. Especially, I have taken, though this poem is not in your syllabus, I have taken this poem only to tell you if you want to understand the beauty of the wasteland. Before taking the wasteland, it's very important that we have to go with the poem because in this poem, you find the concept of modernity, how modern poetry you can say ki what are the basic characteristics of modern poetry, especially the use of image, the use of symbol, uh, something what is occurring within the heart of a character, within the mind of a character, and what the issues have been taken in modern poetry, whether that is a World War experience, post World War experiences, alienation, frustration, loneliness, lust, passion, sexual intercourse, whatever you can say, या you can say कि स्पेशली सिटी एरियाज का जो कल्चर है उसको लेकर के वट एवर हैज बीन डिपिक्टेड आर टोल्ड टू टू अंडरस्टैंड द वेस्टलैंड ऑलवेज आई टेल ऑल द पीपल कि first you have to study what first you have to study love song of J. Alfred Prufrock. Sharing with you PDF file, the original text of love song of J. Alfred Prufrock. Yeah, is it visible? Is it visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Here I told you कि it's what it's you can say कि it has been taken from Dante's Inferno. ये वहां से लिया गया है and here you find what here you find एक elusive some lines have been taken from another text and here it has been presented and I will explain या I will tell you कि what do you find here later on कि उसको मैं खासकर उसका reference कहाँ से लिया गया है and why these lines are important, why these lines have been here put, yeah, or why do you find such a references, especially in the very beginning of the poem. I will explain it later on, but I'm just going to start the these lines जो इंग्लिश में उनका पोएम है लेट अस गो यू एंड आई एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि उन्होंने टाइटल कैसे चेंज किया था, टाइटल उन्होंने कहाँ से लव सॉन्ग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या क्या चीजें थी, ये सब चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। And here you find, in the very first line, you find, let us go, then you and I. In the very first line, you find, let us go. It seems that ki someone is saying to someone, someone is saying to someone, और जो saying है वह saying कोई और नहीं है बल्कि कौन है, प्रूफ्राक है, प्रूफ्राक। तो here you find कि in the very first line you find two characters. It seems that there are two characters. One character is you and second character is I. I just want to tell you when you go with this concept, when you go with this poem, especially ki let us go then you and I. It means that in the whole poem there are the two characters. One is you and second is I. पूरी poem में दो character है, एक you है और दूसरा कौन है, I है। अब उसके बाद एक चीज ये आता है कि अगर यू एंड आई इफ दे आर द टू कैरेक्टर्स, तो ये दोनों कैरेक्टर क्या कह रहे हैं, ये एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कह रहे हैं कि हमें चलना चाहिए, लेट अस गो। लेकिन ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट कम है बल्कि एक ऐसा लगता है कमांड है। इफ यू से कि लेट अस प्ले, इफ यू से लेट अस डू दिस वर्क, इट मीन दैट ऐसा लगता है कमांड किया जा रहा है, ना कि वहां पे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू दिस प्लीज डू दैट, यू डोंट फाइंड सच अ थिंग। सो एक तो ऐसा लगता है कि सडन स्टार्टिंग है, एब्रप्ट स्टार्टिंग है,
without telling any background, yeah, you can say कि without any uh, using any pleasant tone, Prufrock is saying to समवन, और वो जो दूसरा है कोई दूसरा नहीं है बल्कि कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक दूसरा इमेज है प्रूफराक का। प्रूफराक का जो इमेज है वह दो तरह का है कि प्रूफराक के अंदर उसके दिमाग में एक थॉट चल रहा है, और ये जो थॉट है यही थॉट उसका अपना खुद का है, जो क्वेश्चंस भी वही याद करते हैं, जवाब भी वही देते हैं, और वो कहते हैं कि लेट अस गो देन यू एंड आई, अब हमें और आपको चलना चाहिए, इन द वेरी फर्स्ट लाइन। बट बिफोर टेकिंग दिस लाइन हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द टाइटल, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफराक। जे अल्फ्रेड प्रूफराक, इट्स द नेम ऑफ अ कैरेक्टर। मैंने आपको पहले बताया कि ये टाइटल जो है किसी एक शॉप का नाम था। जब सेंट लुइस मिसौरी में टीएस एलियट रहा करते थे तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये वहां से ये शब्द लिया अल्फ्रेड प्रूफराक, या जो जे वर्ड उन्होंने यूज किया है। और ऐसे पहले वो अपना नाम टी वर्ड यूज करते थे, टी ईस्टन से एलियट करते थे, तो कुछ लोग उससे भी उसकी सिमिलैरिटी जोड़ते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लव सॉन्ग है। पूरी पोएम आप पढ़ डालेंगे बट यू डोंट फाइंड एनी लव सॉन्ग। तो टाइटिल इज हाउ, टाइटिल इज आयरॉनिकल। आयरॉनिकल कैसे, बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। इन फ्रॉम द व्हेन यू सी द टाइटल, at means at the very first glance you come to know it's a love poem. There will be romance, there will be beauty, there will be imagination, there will be something, a type of, you can say, sweetness, unlocking of heart and soul, जैसा कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पे पाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, एलियनेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इन्फेचुएशन है, लस्ट है, पैशन है, और जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, और जो अनरेस्ट है, एंजाइटी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक चीज उसमें उन्होंने दिखाया, तो एक चीज ये समझना कि द टाइटल इज हाउ इट्स एन आयरॉनिकल टाइटल। फिर यू फाइंड इन द वेरी फर्स्ट पेज, लेट अस गो देन यू एंड आई। यू एंड आई ये चीज है कि इट हैज बीन डिसाइडेड, या प्रूफराक सेज, प्रूफराक इज हु, प्रूफराक इज आई, I is who, I is Prufrock. But remember that ki Prufrock is a character. Prufrock is an imaginative character. हो सकता है कि ये रियल में भी रहे हो, लेकिन हमें ये मानना पड़ता है कि इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय हु, इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय टीएस एलियट। क्योंकि टीएस एलियट का जो पोइट्री है उसमें यू फाइंड ऑब्जेक्टिविटी, यू फाइंड इम्पर्सनालिटी, यू फाइंड कि टीएस एलियट कोई भी बात अपनी डायरेक्ट नहीं रखते, बट ही इन्वेंट्स कैरेक्टर, ही क्रिएट्स कैरेक्टर, एंड थ्रू अ कैरेक्टर ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज। तो जो प्रूफराक है ये एलियट के दिमाग की उपज है, ये उनका क्रिएशन है, और उनके माध्यम से वो कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, चाहे ये खुद इलियट का अपना अपने जीवन की घटना हो, कुछ लोग उसको ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी को उन्होंने देखा हो उस जमाने में, उस समय, ये भी एक चीजें हो सकती है। तो एक पॉइंट जो निकल करके आता है कि लेट अस गो देन यू एंड आई, यू एंड आई ये चीजें है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि दे आर इन हरी। Prufrock is in hurry and Prufrock is commanding you कि you let us go, you then you and I, मतलब as soon as possible we have to leave this place, और जल्दी से हमें यहाँ से चलना है। ऐसा लगता है वे जल्दबाजी में है, कहीं कहीं पे जाना चाहते हैं। फिर वो बताते समय, बताते हैं हमें कब निकलना है। वो कहते हैं when the evening is spread, हमें तब निकलना है जब शाम हो जाएगी। when the evening is spread out against the sky, when the evening falls against the sky, या when the evening takes the earth in its lap, जब इवनिंग जो है पूरी धरती को अपनी गोद में ले लेगी। इट मीन दैट दे हैव प्रिफर्ड व्हाट टाइम, दे हैव प्रिफर्ड इवनिंग टाइम। तो एक चीज ये भी हो सकता है कि द पीपल आस्क द क्वेश्चन व्हाई डिड दे चूज दिस टाइम, व्हाई डिड दे चूज दिस टाइम, व्हाई डिड दे नॉट चूज late night, why did they not choose you can say early morning, morning, afternoon, why they have choose the evening time। एक चीज ये भी हो सकता है कि जो इवनिंग टाइम है, पहली बात तो जो पोयम है इसमें देखेंगे आपकी फॉग है, मिस्ट है, और ये जो है क्या है कि इट सीम्स दैट कि नवंबर दिसंबर जब जो है ठंडी यूरोप में, इंग्लैंड में क्लाइमैक्स पे रहती है,
तो उस समय को लिया गया है। और इतनी ठंडी पड़ती है कि लोग जो है क्या करते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। तो ऐसे समय में परहैप्स द critics believe perhaps Prufrock wants to escape from the eyes of the passers by। जो राहगीर है उनकी नजरों से वो बचना चाहते हैं, वो लोगों की नजरों में आना नहीं चाहते हैं। दिस इज वाई ही हैज पिक्ड अप इवनिंग टाइम। यही रीजन है कि उन्होंने कौन सा समय चुना है, इवनिंग टाइम, व्हेन the evening falls against the sky। जब sun is about to set या sun has set and the evening falls, in evening is spread all you can say all over the earth, yeah, around us, then he has preferred this time because he thinks that this time is suitable what he wants to do। जहाँ वो जाना चाहते हैं, जो काम वो करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम सुटेबल होगा। दिस इज वाई यू फाइंड हियर कि he has just picked up, yeah, he has he has taken the evening time। And there you find in the very third line, this image is very important, like a patient etherized upon a table। ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट है। like a patient etherized upon a table, and he says that we have to go in the evening time and evening seems him। या he compares evening like a patient। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, and such image you don't find in poetry। Perhaps Eliot was the first poet, yeah, before Eliot someone has used, but in modern poetry you don't find, and here you can just see कि Eliot says like a patient etherized upon a table, like a patient, कि evening जो है ऐसा लगता है it's like a patient and has been given what ether। Ether is injected to a patient who is going to be operated। ether जो है एक दिया जाता है उस पेशेंट को जिसका ऑपरेशन होता है, उसको शून्य करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने लिया कि जो इवनिंग है वो मुझे कैसे नजर आती है, इवनिंग मुझे पेशेंट के समान नजर आती है, लाइक अ पेशेंट इथेराइज्ड अपॉन अ टेबल। जो कि ऐसा लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में कोई पेशेंट जा रहा है जिसको इंजेक्ट किया गया है, और वैसे ही उसका इमेज। तो सवाल ये उठता है कि इफ प्रूफ्राक सी सच टाइप ऑफ इमेज या use such type of image, if such images come in the mind of Prufrock, is he in love या is it a love poem? जो लव पोयम होगा उसमें इस तरह का इमेज नहीं आएगा। दिस इज वाई यू फाइंड कंट्रास्ट, दिस इज वाई यू फाइंड कि व्हाट यू सी इन द टाइटल you don't find in the poem। when you go with the poem, when you read the poem in a detailed way, you come to know कि there is a difference between the title and the poem। the title at the very first glance it seems that that is a love poem, there will be romance, imagination, beauty, sweetness, pleasant atmosphere, appealing, all these things। but here you find कि first both these people, Prufrock and his friend, who is his friend we don't know। कुछ लोगों का कहना है वो प्रूफ्राक का ही दूसरा रूप है जो उसके दिमाग में चल रहा है। तो दीज टू पीपल दे आर इन हरी, वे जो है क्या है, जल्दबाजी में है। पीपल आर इन हरी, वे दोनों लोग कैसे, वे दोनों लोग जल्दबाजी में है। और ये दोनों लोग जो जल्दबाजी में है, दे डिसाइड टू गो समवेयर, दे डिसाइड टू गो समवेयर, वी डोंट नो वेयर दे वांट टू गो। अभी नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा कहाँ जाते हैं, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव दे हैव, व्हाट्स द मोटो दे हैव, व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन उन्होंने जाने का डिसाइड किया है, और फिर डिसाइड करते हैं कि व्हेन वी विल गो या व्हेन वी विल डिपार्चर, इन द इवनिंग टाइम, व्हेन द इवनिंग फॉल्स। एंड द critics says, yeah, it is believed, yeah, it seems that they have preferred this time because they want to avoid, they want to escape themselves from the eyes of the passers by other people। and then it's the evening time, and there is a too cold, snow is falling, most of the people are in their houses, they have kept themselves in their houses, so there is no one in the street। जिस गली से या रास्ते से वो जाना चाहते हैं वहां पे शायद कोई है नहीं। दिस इज वाई दे हैव जस्ट taken। but another is important point is that कि here you find what, here you find the image। and what is image? You find simply evening has been presented as a, what evening has been presented as a patient, and patient has been injected, yeah, he has been given ether, and only as you can say ki unconscious situation, fainted situation,
where there is no joy, no delight, inactive condition. तो जो इवनिंग है वो पेशेंट के समान है, जो इनएक्टिव है, जिसमें लेजीनेस है, लेथार्जिक सिचुएशन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वन हु इज इन लव कांट सी सच अ पिक्चर। तो ये रियलिटी है कि उनका जो लव है वह रियली में कुछ और है और कुछ और देखते हैं। फिर उन्होंने कहा लेट अस गो, फिर वो दूसरा कमांड देते हैं लेट अस गो। आपको मैंने पहले भी बताया कि व्हेन a word या when a line is going to be repeated more than one time it is known as refrain। अगर एक लाइन, वर्ड, क्लास, पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर पोयम में रिपीट किया जाता है मोर देन वन टाइम तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्रेन कहा जाता है। सो यू फाइंड एब्रप्ट स्टार्टिंग, यू फाइंड इंटीरियर मोनोलॉग, you find image, evening is like a patient authorized upon a table, and you find let us go again। So here you find refrain, कह रहे कि हमें चलना चाहिए, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया इवनिंग टाइम। अगेन प्रूफराग गिव्स a command या अगेन प्रूफराग says to his friend या to someone who is with him, I don't know whether he is his friend या you is only the idea that is happening, that is coming, that is taking place in the heart and mind of Prufrock। We can't say डायरेक्टली कि हाँ ऐसा है, बट यू फाइंड कि वो दोबारा उसे कहते हैं हमें अब हमें चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। हमें कहाँ पे चलना चाहिए? हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट इमेज। हमें जो चलना चाहिए वो तंग गलियों से चलना चाहिए, स्ट्रीट से चलना चाहिए। प्रूफ्राक डजेंट pick up, yet he does not have choice to go on highway या to go through highway। he does not have choice to go, आप कह सकते हैं कि वाइड स्ट्रीट या आप कह सकते हैं कि वाइड रोड उधर से नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं हमें गलियों से चलना है। तो जब वो गलियों की बात करते हैं तो इससे पता चलता है पोयम का सेटिंग, जो पोयम का सेटिंग है ये अर्बन एरिया में है, टाउन एरिया आप जिसे कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, वहां का नहीं है, ना तो विलेज है ना ही मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बल्कि क्या है? अर्बन एरिया का। तो ये जो अर्बन एरिया है, टाउन एरिया हो सकता है, वहां पे जो तंग गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों से प्रुफ्राक निकलने की बात करते हैं, हमें उन गलियों से चलना चाहिए। इसका मतलब कि he knows the way very well कि which street is favorable, which street is suitable, which street is you can say कि will be beneficial for prufrock। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें हमने डिसाइड कर लिया हमें गलियों से चलना, लेकिन वे गलियां कैसी होगी? हाफ डिजर्टेड। हाफ डिजर्टेड का मतलब उस पे ऐसी गलियों से चलना है जहां पे कम लोग आ जा रहे हो। हाफ डिजर्टेड मीन्स पीपल का आना जाना लगभग बंद हो चुका होगा, कम लोग ही होंगे। एक तो इवनिंग टाइम है, ठंड बहुत पड़ रही है, ऊपर से ऐसी गलियों से चलेंगे जहां लोग कम आते जाते हैं। तो अगर कम आते जाते हैं तो इससे इनका इंटेंशन पता चलता है क्या, कि या तो प्रूफराक शाई नेचर है, लोगों से जो है मिलना नहीं चाहते, लोगों की निगाहों में आना नहीं चाहते, या तो प्रूफराक की जो नियत है उसमें कुछ गड़बड़ी है, वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि लोग देख ना सके प्रोबेबली। क्योंकि देरेदा जब से आए तो देरेदा ने पोइट्री का जो एक्सप्लेनेशन का तरीका था, उन्होंने कहा कि देर इज नो फिक्स्ड मीनिंग, यू कांट से दिस इज ओनली द मीनिंग, या प्रूफराक जस्ट वांट्स टू से दिस, नो नॉट एट ऑल। देर इज अ प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग, दिस इट मे बी, इट मे बी, इट मे बी, ये सब चीजें हो सकता है। तो perhaps Prufrock wants to escape from the eyes of the people. Perhaps Prufrock has some bad intention. If Prufrock has does not bad intention, Prufrock has shy nature. Perhaps Prufrock wants to do such a type of thing which he doesn't allow to come in the eyes of the people, कि वो लोगों को निगाहों में आए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें कुछ निश्चित गलियों से चलना है, लेकिन वे गलियां ऐसी होगी जहां पे लोगों का आना जाना कम होगा। थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट, बहुत कम लोग वहां से आते जाते हो। थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट द मटरिंग रिट्रीट्स, द मटरिंग रिट्रीट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। मटरिंग इट्स अ साउंड, द मटरिंग रिट्रीट्स इट्स अ साउंड। तो ये साउंड ओरिएंटेड वर्ड है और करे करे कि वहां से लोगों के आने जाने की
बुनबुनाने की या जो राहगीर है उनके जो आने-जाने की जो स्थिति होगी वह क्या होगी बहुत कम होगी। द मटरिंग रिट्रीट्स होगा। फिर उन्होंने कहा मटरिंग रिट्रीट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ साउंड ओरिएंटेड वर्ड इट रिफर्स टू द साउंड ऑफ द पीपल who are the passers by who come and go या the people are kept themselves in their houses और अपने घर में ही रह करके वे लोग कुछ बातचीत करते होंगे वहां से कुछ आवाजें आती होगी लेकिन जो है वो कहते हैं कि हमें उनकी निगाहों से बच करके चलना है। फिर उनका ऑफ रेस्टलेस नाइट्स और ऐसा लगता है कि हमें जो है ये जो जब हम जा रहे हैं तो इवनिंग के बाद नाइट होगी लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं यह एक ऐसी रात्रि है रात्रि हमारे जीवन में बहुत आई है लेकिन यह रात्रि हमें बेचैन करने वाली है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन हु इज इन लव the person who sings a love song as you get the title वो सारी चीजें ऐसा कर रहा है जो अगेंस्ट लव में जा रही है। डिजर्टेड स्ट्रीट का यूज करना, इवनिंग को पेशेंट के रूप में देखना, लोगों की निगाहों से बचना और फिर कहता है कि यह जो नाइट होगी यह रेस्टलेस नाइट मेरे जीवन की सबसे बेचैन रात्रि होगी। तो कल मैंने जब आपको क्रिटिकल एनालिसिस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ही इज इन लव विद समवन बट ही डजंट नो हु डज ही लाइक और ही वाज टू प्रपोज दैट गर्ल और वो कहते हैं कि उस गर्ल को प्रपोज करना ये एक तरह से अगर इफ टुडेज नाइट इफ आई प्रपोज तो ये नाइट मेरे लिए रेस्टलेस है क्यों अगर उसने डिनाई कर दिया मेरे प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट किया तो ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करना मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि ये जो नाइट है एक ऐसी नाइट है रेस्टलेस नाइट है ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स और फिर वो कहते हैं कि हमें जहाँ पे चलना है वो कहाँ पे चलना है चीप होटल में चलना है। कॉस्टली होटल की बात नहीं करते ये दूसरा ऑब्जेक्ट आता है जिससे पता चलता है कि वो किसी टाउन एरिया की क्योंकि अगर बड़े किसी शहर की बात करते तो वहाँ बड़े होटल का कॉन्सेप्ट होता तो टाउन एरिया या आप कह सकते हैं सिटी एरिया या एक छोटे मोटे शहर में जहाँ पे वो चीप होटल्स में जा रहे हैं और ये भी पता चलता है कि अगर वो चीप होटल्स में जा रहे हैं तो प्रोफराग जो है वह मिडिल क्लास के है या लोअर मिडिल क्लास के है और जो एक एजेड है 35 ईयर्स है ही इज बॉल्ड और आप कह सकते हैं कि ही इज इन लव समवन बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही कुड नॉट प्रपोज ही कुड नॉट से। तो यहाँ पे उनका साइकी पता चल रहा है उनका साइकी क्या पता चल रहा है कि वो ये कहते हैं कि टुडेज नाइट इज अ रेस्टलेस नाइट और आज की रात में मुझे जाना है लेकिन कहाँ पे जाना है किसी चीप होटल में जाना है। फिर उन्होंने एक और पॉइंट बताया एंड सा डस्ट रेस्तरां और उन्होंने कहा कि मैं जितना भी रेस्तरां देख रहा हूँ जैसे जब वो वहां से गुजर रहे तो छोटे छोटे रेस्तरां चाय की दुकानें या कुछ भी और भी हो सकती है क्योंकि अभी इवनिंग टाइम ही वो जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हर जगह मुझे केवल गंदगी नजर आ रही है और सारे रेस्तरां ऐसा लगता है धूल से भरे हुए हैं। तो एक चीज ये है कि परहैप्स द पोएट वांट्स टू टेल कि रेस्तरां में गंदगी नहीं है बट द मतलब प्रॉब्लम इज नॉट इन द मार्केट बट द प्रॉब्लम इज इन द माइंड ऑफ द प्रूफराग। जो प्रॉब्लम है वो प्रूफराग के माइंड में है क्योंकि प्रूफराग के माइंड में निगेटिविटी है दिस इज व्हाई ही सीज निगेटिविटी एवरीवेयर। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जितने ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट जो यूज किए गए हैं वेदर दैट इज अ चीप होटल whether that is a sawdust restaurant, whether that is a restless night, these things you find कि ये जितनी भी चीजें हैं ओनली टू टेल यू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्रूफराग कि प्रूफराग के दिमाग में क्या चल रहा है उनके अंदर कौन सा थॉट आ रहा है। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया एक तो जल्दबाजी में है डिसाइड कर लिए इवनिंग में जाना है इवनिंग उन्होंने पेशेंट के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की या देखने दिखाने की कोशिश की। फिर उन्होंने बताया कि हम जो है नैरो स्ट्रीट से चलेंगे वहां पे राहगीर कम होंगे गुजरने वाले कम होंगे फिर उनकी निगाहों से बचना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वहां पे जो बटरिंग रिट्रीट साउंड वो कम हो गई होगी लोग अपने घरों में कैद होंगे। फिर कहते हैं जो आज की रात्रि जो है सब मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रात्रि है। फिर चीप होटल्स की बात करते हैं स्टारडस्ट रेस्तरां की बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है और oyster shells है। Here you find oyster shells. And what do you find oyster shells? जो oyster shells है ये इंडिकेट करता है कि जो मछलियां होती है उनकी जो शेल्स होते हैं उनको निकाल के रखा गया बहुत बदबू आ रही है उनको
रेस्तरां से, उस होटल से। सो व्हाट यू फाइंड हियर कि एक तो जो होटल है वहाँ पे स्टारडस्ट है, और स्टारडस्ट के अलावा जो है वहाँ पे ऑयस्टर शेल्स है। दिस ऑयस्टर शेल्स रिफर्स की जो फिशेज होती है, उस फिशेज की जो शेल्स होती है, उसको ऐसा लगता है निकाल करके वहां पे रखा गया है, काफी बदबू है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि प्रूफराग वन द पर्सन हु इज इन लव, तो लव का जो फीलिंग होता है वहां पे, उसका मैडनेस तो दूसरा होता है। उसका जो होता है कि दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, और उस आदमी को ये सब चीजें नजर आ रही है। तो लोग कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ लवर ही इज, व्हाट टाइप ऑफ लवर ही इज। अगर आप किसी के साथ लव में है, इफ यू गो इन पार्क और ये सब बात करिए कि देखिए जो है क्या नाम है कि बहुत गंदा होटल है, ऑयस्टर शेल्स है, तो भाग जाएगा या भाग जाएगी, वो कहेगा कि। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आर यू इन रोमांटिक मूड, या हैव यू द सेंस ऑफ रोमांस आर नॉट, हैव यू द ब्यूटी ऑफ रोमांस आर नॉट। ये एक चीजें होती। तो ये मॉडर्न एज के लवर को बताया गया, जो कि एजेड है, उसकी जिंदगी का अहम पड़ाव निकल चुका है। अब उसमें लव का वो फीलिंग्स नहीं है, वो एस्थेटिक सेंस नहीं है, और वो जिंदगी को बहुत प्रैक्टिकली देखता है। और जब प्रैक्टिकली देखता है तो उसमें क्या क्या चीजें, क्योंकि ही इज नॉट इन हाई स्कूल, ही इज नॉट डूइंग ग्रेजुएशन, बल्कि आप ये कहिए कि वो ग्रेजुएशन, एचडी, पीएचडी सब कर चुके हैं, अगर एक भाषा में बोला जाए तो। उनका जो उम्र है, उस उम्र के पड़ाव पे वैसा हम इमेजिन नहीं कर सकते लव का, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या उसके बाद का लाइफ होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्गुमेंट, करे कि जिस जो है गली से मैं गुजर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे केवल बोरिंग बातें हो रही मुझसे। स्ट्रीट्स दैट फॉलो, स्ट्रीट्स को यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, स्ट्रीट्स हैज बीन पर्सोनिफाइड। और नाइट को जब ये कहा जाता है रेस्टलेस नाइट, तो नाइट कभी रेस्टलेस नहीं होती है, बल्कि हु इज रेस्टलेस, प्रूफराग हिमसेल्फ इज रेस्टलेस। There is बेचैनी, there is problem, there is समस्या in the mind of Prufrock. No one is बेचैन. Prufrock himself is बेचैन, and the sense of बेचैनी you can see in the mind of Prufrock. So restless nights in one night cheap hotel, whether that is a cheap hotel, that is a sawdust restaurant, that is the oyster shells, ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। These words have been used to tell the problems of Prufrock which are found in his mind. प्रोफ्रॉग जो है एक इंसान जरूर है, उनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोफ्रॉग का अपना एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्गुमेंट, करे जिन गलियों से मैं जा रहा हूँ, उन गलियों में कोई आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोरिंग बातें कर रहा है, कोई मुझसे पूछ रहा है। लाइक सिमली का यूज किया गया है। टीडियस माने बोरिंग, थकाऊ, उबाऊ, आर्गुमेंट। तो हो सकता है कि कोई जो और भी जो यू है, वो यू कोई और नहीं। मैंने बताया कि एक प्रोफ्राग के दिमाग में एक थॉट चल रहा है, वो उसी का रिप्लाई देते हैं, फिर सोचते हैं, फिर रिप्लाई देते हैं। तो वो बोरियत भरी लाइफ जी रहे हैं। फिर कह रहे कि ऑफ इंसीडियस इंटेंट, और ऐसे लगता है कि ये जो इंटेंट है, जो मेरा इरादा है, यह इंसीडियस है, यह जो है इनवैल्यूएबल है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है। ऑफ इंसीडियस इंटेंट, इंटेंट इंटेंशन, द पार्टिकुलर विश, द पार्टिकुलर डिजायर। ये कह रहे हैं कि व्हेन आई पासेस थ्रू द स्ट्रीट, सम नेगेटिव थॉट्स कम, या जो उनके साथ चलने वाला है वही क्वेश्चन, उनके साथ चलने वाला कोई और नहीं, एक विचार है, वह उनसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग। वही करेक्ट ऑफ इनसीडियस इंटेंट टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, करेक्ट, टू लीड यू, मैं आपके साथ चल तो रहा हूँ, या आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ, टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। लेकिन तुम इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? द वर्ड ओवरवेलमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ओवरवेलमिंग रिफर्स puzzling, sometimes overwhelmed refers enjoying के सेंस में। लेकिन उन्होंने ये कहा, चूंकि जो उनके साथ यू चल रहा है, वो ये जानना चाहता है कि ठीक है, तुम तो बता रहे हो कि रेस्तरा गंदा है, साडस्ट होटल है, या यहाँ पे है, तुम बार बार, लेकिन जो यू है बार बार उससे क्वेश्चन पुटअप करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा इरादा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे ओवरवेलमिंग क्वेश्चन का, जिसका तुम्हारे अंदर एक ईगर है, जो जानने की कोशिश कर रहे हो, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चल रहे हो, केवल चलते रहो, चुपचाप रहो, क्वेश्चन मत पूछना। तो
जब एक आदमी ऐसा कोई करे तो क्या वो लव में है? ऐसा लगता है जैसे डरा। अगर ये आदमी कोई इस तरह की बात करे तो इसका मतलब वह डरा है, इसका मतलब वह सहमा है, इसका मतलब उसके अंदर फियर है, इसका मतलब उसके अंदर एंग्जाइटी है, इसका मतलब उसके अंदर अनरेस्ट है, इसका मतलब उसके अंदर बेचैनी है, और वह जो है फ्रस्ट्रेटेड है, एलियनेटेड है, इसीलिए सामने वाले को भी डांट रहा है कि मुझसे बकवास ना करो, मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, तुम्हारी इस ओवरवेलमिंग क्वेश्चन से मैं परेशान हो गया हूँ। और आगे वर्ड यूज भी करता है रिब्यूकिंग टोन में, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, अब दोबारा मुझसे मत पूछना कि ये क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारा काम केवल मुझे फॉलो करना है। इसका मतलब यू का कोई अस्तित्व नहीं है, यू इज ओनली लिसनर। You don't have any right to ask the question. You don't have any right to know where Prufrak is going, and you is only follower, a blind follower. तो प्रूफराग जो है वो कोई दूसरा नहीं है, बल्कि ये जो यू है वो प्रूफराग का ही थॉट है। और वो थॉट जो है ये जानना चाहता है, जैसे हम ही है, आप है, अगर हम लोग कहीं निकलते हैं कभी कभार, जिसको वाइडरिंग कहा जाता है, एमलेस मूविंग कहा जाता है। हम जाते हैं तो हमारे अंदर होता है यार क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है, कभी कभार बेबल से जाया जाता है, कभी कभार जाने की कोशिश करते हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं और निकल जा रहे हैं। तो ये उस समय हमारी स्थिति होती है जब हम अनरेस्ट की कंडीशन में होते हैं, जब मन बेचैन होता है। जो रेस्टलेस नाइट है वो रेस्टलेस नाइट नहीं है, बल्कि हु इज रेस्टलेस, प्रूफराक हिमसेल्फ इज रेस्टलेस। फिर उन्होंने कहा, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन दोबारा ना पूछेगा, लेट अस गो, बस तुम्हें चलना है, जहां मैं विजिट करने जा रहा हूं वहां तक तुम्हें मेरे साथ चलना है। डोंट आस्क क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू गोइंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग, व्हाट डू यू वांट टू डू देयर, व्हाट डू यू वांट टू गेट देयर। डोंट आस्क tedious question and don't argue with me। पूरे रास्ता बड़बड़ 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 करते हुए कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये सारी चीजें पूछ रहे हो। तो प्रूफराक का एक ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेटेड है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसके साथ जो है चीजें जुड़ी हुई है। दीज थिंग्स वी फाइंड नाउ, यू फाइंड। फिर कहता कहता कि अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं, एक ऐसे कमरे में जाएंगे। वो रूम की बात करते हैं, अभी होटल की बात नहीं की है, उन्होंने इसकी बात नहीं की है। चीप होटल उन्होंने बताया कि चीप होटल में जाना है, और उस चीप होटल में हो सकता है कि कुछ औरतें हैं जो कि आ रही है जा रही। कम एंड गो, ये लाइन इंडिकेट, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लाइफ की डायनेमिक सिचुएशन को दिखाता है कि औरतें आ रही है जा रही, इट मीन दैट दे आर एक्टिव, दे आर एक्टिव। उनमें लेजीनेस नहीं है, उनमें लेथार्जिक सिचुएशन नहीं है। वीमेन कम एंड गो, वीमेन कम एंड गो इन द रूम, द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो। और वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइकल एंजिलो के बारे में बात करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो जो है आपको ऑलरेडी पता है, पेंटर, इटालियन रिनेशा के बड़ा नाम जो है। तो वो ये कहते हैं हमें उस रूम में जाना है जहाँ पे औरतें आ रही है जा रही है और वे माइकल एंजिलो के बारे में बात कर रही है। शायद ये इंडिकेट करता है कि वीमेन आर कांसा, कांसा मीन्स होता है बर्मा, कि उनको बहुत जानकारी है। वीमेन हैव कॉन्फिडेंस, वीमेन नो मच अबाउट एंड दे नो, यू कैन से कि माइकल एंजिलो के बारे में। अब प्रूफ आपको लगेगा और ये बाप रे, तो माइकल एंजिलो के बारे में बात करती है, ये कौन है, कैसे है, अगर उन्होंने मुझसे माइकल एंजिलो के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, मेरी क्या कंडीशन होगी। आई विल बी हेल्पलेस, आई विल बी, यू कैन से कि किसी लायक नहीं रहूंगा। सो मेनी क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम ही लोग हैं, एग्जामिनेशन से पहले जो है कितना भी तैयारी रहे लेकिन फिर भी अपने अंदर निगेटिविटी, अरे एग्जामिनेशन होगा, जाऊंगा इंटरव्यू में, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो इतना निगेटिविटी आ जाती है कि पहले से ही 50% आदमी नर्वस हो जाता है। और जब वहां पे पूछना शुरू किया तो और भी चला गया। तो एक जो हमारी सिचुएशन आज के समय में है, यू कैन से कि इंटरव्यू, द सेम प्रॉब्लम वी सी हियर। तो उसका तो कहीं ना कहीं मॉडर्न वीमेन क्या है,
वे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मॉडर्न वीमेन काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, मॉडर्न वीमेन आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो। और प्रूफ्रॉक में क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब जैसे ही वो इतना बात करता है कि वीमेन आ रही है जा रही, माइकल एंजेलो के बारे में बात करी, तो उसका कॉन्फिडेंस कम होगा और वह बहानेबाजी करने लगेगा। और उस बहानेबाजी में सबसे पहला बात करेगा द येलो फॉग। अरे देखिए, अ, अब मौसम की बात करने लगा, मेन टॉपिक से हट गया, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, वहां जाके क्या कहना है, वहां जाके क्या करना है। प्रूफ्राक उस मुद्दे से हट गए और हैमलेट की तरह उनका डिले इन एक्शन शुरू हो गया। अरे द येलो फॉग दैट रफ्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेज। कह रहे कि जो येलो फॉग है, इवनिंग टाइम है, ठंड का महीना है, फॉगिंग हो रही है, और ये जो फॉग है, ये कुछ जो है कहाँ पे गिर रहा, विंडो पेज। हो सकता है कि जो होटल है, उस होटल में कुछ खिड़कियां लगी हो, या जो जिन गलियों से वो जा रहे हैं, वहां पे जो घर है उनमें जो खिड़कियां लगी है, उस पर कुछ जो है विंडो पेन का मतलब विंडो, खिड़की पेन, जो उस पे जो कांच की कांच जो लगा हुआ है, कांच की खिड़कियां जो है, तो उस पे कहते हैं कि वहां पे फॉग का फॉलिंग है। और उस फॉग को उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने उसको पर्सोनिफाइड कर दिया और उसको एक, आप कह सकते हैं एनिमल के रूप में देख रहे, करे रब से इट्स बैक। ऐसा लगता है कि ये येलो फॉग रबिंग कर रहा है, मजलिंग कर अपने बैक को खुजला रहा है, रब से इट्स बैक। वो अपने बैक को खुजला रहा है। तो अपने बैक को खुजला रहा है, देखिए इनके दिमाग में क्या शरारत आ रही है। अ, अगर आपका लाइफ का कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको नजर आएगा, वो चीजें नजर आएंगी। या जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि इवनिंग में जाना है और होटल में जाना है, उस कमरे में जाना है जहाँ पे वीमेन कम एंड गो, लेकिन जैसे आपको पता चला कि वे माइकल एंजिलो के बारे में बात कर रही है, तो आपको क्या नजर आने और लगा, फॉग नजर आने लगा। अभी आगे उनको कैट नजर आएगा, अभी आगे उनको जो है डॉग नजर आएगा, अभी तमाम और चीजें नजर आएंगी, तो वो इसी पर बात करना शुरू कर देंगे। और ये जो बात होती है, यह मीनिंगलेस बात है, यह फ्यूटाइल है, इसका उनके इरादा से कोई लेना देना नहीं। उनका इरादा क्या है, लव सॉन्ग, उनका इरादा टू प्रपोज अ गर्ल, लेकिन वो अपने ऑब्जेक्टिविटी में, अपने उद्देश्य में वो नहीं हो पा रहे। तो मैं यहीं तक रखूंगा, ये सारी चीजें थी। और मैं इस पोर्शन को जो ये है मैं कल आपको बताऊंगा, या जब पूरा कंप्लीट कर लूंगा देन आई विल टेल यू। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दीज आर हाईली सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, उनका ये लाइफ, ये चीजें जो है। सो आई एम कंक्लूडिंग हियर, आई डोंट थिंक दैट यू गॉट एनी प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम है, बट यू विल एंजॉय अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट्स माय फेवरेट पोएम द वेस्टलैंड, एंड यू कैन से लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्राग। ये सब बहुत ही खूबसूरत पोएम्स है, मॉडर्न एज को समझने के लिए इससे बेहतरीन पोएम्स यू कांट फाइंड। So now concluding, okay, thank you for giving your थैंक यू question. सर।